Dear students, in exercise 1.2 we have saw that how to represent root n on the number line for any positive integer n, जहाँ आपका n जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर था, राइट। लेकिन जो नाउ नेक्स्ट वन today we study about geometrical representation of a real number, that is suppose for root x where x is any positive real number। तो root x को किसी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले जो मेथड है इसका वो हमें सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगी। Mark as A and let this point be B। A से B तक का जो आपका डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं कि x है, ठीक है। क्योंकि हमें रूट x को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है तो सबसे पहले हमने किसी नंबर लाइन के ऊपर x डिस्टेंस को मार्क किया। आफ्टर दैट फ्रॉम B टू C टेक यूनिट डिस्टेंस 1, इसको एक्सटेंड कर सकते हैं आप। एक्सटेंड करने के बाद जो आपका AC डिस्टेंस बना दैट इज इक्वल टू x प्लस 1। दिस वन इज x, ये 1 है, ये आपके पास x प्लस 1 आ गया। अब क्या है कि आपको AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है। AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए हमें AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा। फॉर दैट विद A as सेंटर मेक एन आर्क मोर देन हाफ ऑफ AC के हाफ से आप आर्क ड्रॉ कीजिए AC के दोनों तरफ मोर देन फ्रॉम विद A as सेंटर। अगेन विद C as सेंटर make two arcs which intersect the previous one। Now join this perpendicular bisector और AC को जहां भी काटेगा let that point be O। Now O is midpoint of AC with O as center draw a semicircle with AC as a डायमीटर। ये आपका OA आपका रेडियस रहेगा इस केस में। नाउ फ्रॉम पॉइंट B ड्रॉ अ परपेंडिकुलर व्हिच इंटरसेक्ट द सेमीसर्कल, लेट दैट पॉइंट बी D। अब हमें अगर मैं O से D को ज्वाइन करता हूं, this angle is of 90 degree। now triangle OBD is a right angle triangle। triangle OBD is a right angle triangle। OA is radius of this semicircle, OC is also equal to OA, OD is also equal to OA and OC। now OA is equal to OC is equal to OD। you know that AC is equal to x plus 1, half of AC is OA and OA is equal to x plus 1 divided by 2 cos OA जो आपका डिस्टेंस है वो x plus 1 divided by 2 या, और इसी तरह से ये डिस्टेंस भी आपका x plus 1 divided by 2 रहेगा। नाउ अगर मैंने
निकाल लिया. नाउ OB इज इक्वल टू, OB कैन बी रिटन एज OB इज इक्वल टू OC माइनस AOC माइनस BC. To find OB, OC is equal to x plus 1 divided by 2. What is that? BC is equal to 1. OB is equal to x, आपका एलसीएम रहेगा 2. इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 1 by 1. 2 divided by 2 is 1. 1 into x plus 1. X plus 1 minus 2 divided by 1 is 2 into 2. 2 into 1 2, which is equal to OB is equal to x plus 1 minus 2. 1 minus 2 is माइनस 1 अपॉन 2. तो आपके पास OB जो डिस्टेंस आया दैट इज इक्वल टू OB का जो लेंथ है दैट इज x माइनस 1 डिवाइड बाई 2. OB आपने निकाल लिया, OD आपको पता है. नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD यू कैन अप्लाई पाइथागोरस प्रॉपर्टी. नाउ बाय यूजिंग Pythagoras property, by using Pythagoras property, square of hypotenuse is equal to sum of squares of other two sides. Here hypotenuse is OD, so OD square is equal to other two sides are OB and BD. Now we want to find unknown जो आपकी साइड है दैट इज BD है. BD को हम निकालने की कोशिश करेंगे. तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD. OD मीन्स OD आपके पास दिस वन x प्लस 1 divided by 2 का whole square minus OB. What is OB? OB is x minus 1 upon 2 का whole square. Now इसको सॉल्व करने पर BD square is equal to x plus 1 square is x plus 1 का whole square upon 2 square is 4 minus x minus 1 whole square upon 4. Now BD square is equal to x plus 1 whole square is equal to a square plus b square plus 2ab upon 4 minus x minus 1 whole square is equal to a square plus b square minus 2ab. Now BD square is equal to LCM is 4. You are left only with x square plus 1 plus 2x माइनस आपका होल मल्टीप्लाई कर रहा है तो आपके साइन चेंज कर जाएंगे. x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2x. BD स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर कैंसिल विद माइनस x स्क्वायर 1 with minus 1 2x plus 2x is equal to 4x upon 4 cancelled with 4 you are left with x. So BD is equal to स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा यानी कि BD जो आपका डिस्टेंस है वो रूट x के इक्वल है. दिस BD is equal to रूट x. x आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर चूज कर सकते हैं. अब इस डिस्टेंस को नंबर लाइन के ऊपर दिखाने के लिए सिंस BD is equal to dx तो ओपन योर कंपास
equal to BD and with B as center and BD as radius, make an arc which intersect the line at point P and P is the position of root x. ये आपका डिस्टेंस रूट x था, ये भी रूट x रहेगा। तो इन दिस वे x का कोई भी वैल्यू आप चूज कर सकते हैं। सपोज x का वैल्यू मैं आपका चूज करता हूँ 9.3, देन रूट x क्या हो जाएगा आपके पास, रूट x इज इक्वल टू रूट 9.3। तो इस तरह से जैसे हमने रूट x को रिप्रेजेंट किया, ये आपका रूट x डिस्टेंस है। अगर मैं 9.3 लेता हूँ तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको AB डिस्टेंस मैं चूज कर लेता हूं विच इज इक्वल टू 9.3। जैसे मैंने x चूज किया था, इसको एक्सटेंड करना है अप टू 1 यूनिट BC। नाउ फाइंड मिड पॉइंट ऑफ AC। नाउ लेट दैट पॉइंट बी O with O as center and OA as radius, make an arc, yeah, semicircle. Now at point B make an angle of 90 degree like this। अगर ये रूट x है, अगर मैं रूट 9.3 लिया है, BD distance here is रूट 9.3। To draw to show it on line, number line, we have to open compass equal to BD and with B as center make an arc which intersect the number line at point P and P is the position of root 9.3। So in this way you can show any square root of any positive real number on the number line। Now next topic is rationalization। rationalizing the denominator। rationalizing the denominator। First of all, what do you mean by rationalization? Suppose मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, रूट टू को जब आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यू कैन इजिली शो इट ऑन नंबर लाइन। बट अगर मैं लिखता हूँ 1/√2, 1/√2 को अगर मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो इजीली नहीं होगा। इसके लिए अगर मैं इस डिनोमिनेटर को इरेशनल से इरेशनल बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इरेशनल से इरेशनल बनाने के लिए आपको √2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और √2 से ही डिवाइड करना पड़ेगा। इट मीन्स √2 into 1 इट इज √2, √2 into √2 स्क्वायर, और √2 स्क्वायर का जो वैल्यू होगा, √2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रेज़्ड पावर, रूट का वैल्यू रहता है आपके पास रेज़्ड पावर 2 एंड होल पावर 2। 2 से 2 आपका कैंसिल होगा, यू आर लेफ्ट ओनली विद 2। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट का जो स्क्वायर होता है दैट इज वही नंबर रहता है रूट। अब आपका जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल से रैशनल में हमने कन्वर्ट कर दिया है। नाउ यू कैन इजिली रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। √2 is the halfway between 0 to √2 के बीच का जो डिस्टेंस होगा। सो रैशनलाइजेशन हम बता रहे थे कि व्हाट डू मीन बाय रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर मीन्स टू मेक द डिनोमिनेटर इरेशनल टू रैशनल। अब अगर हम इरेशनल से रैशनल में डिनोमिनेटर को कन्वर्ट करते हैं, दैट इज रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। और इसमें कुछ एग्जांपल लेके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज
1 by 2 plus root 3. In this question, numerator is 1, which is rational, and denominator is combination of rational and irrational. Rational plus irrational is irrational, so here denominator is irrational. इस irrational को rational में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी नंबर को यहाँ लिखेंगे, लेकिन आप जो आपका साइन है पॉजिटिव उसको नेगेटिव कर देंगे, उसी से मल्टीप्लाई, उसी से डिवाइड करेंगे। अगर हम करते हैं, इसके पीछे कारण क्या रहता है कि आपका डिनोमिनेटर में आपकी एक आइडेंटिटी बन जाती है, दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 1 इंटू 2 माइनस रूट 3 इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 अपॉन a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। You know that a plus b into a minus b is equal to a square minus b square. So here in this case a is 2 and b is root 3. A plus b into a minus b, it can be written as a square means 2 square minus b square means root 3 का square. 2 minus root 3 upon 2 square is 4, root 3 square is 3, which can be written as 2 minus root 3 upon 4 minus 3 is 1, which is equal to 2 minus root 3. अब हमने डिनोमिनेटर को आपका इरेशनल से रैशनल में कन्वर्ट कर दिया, which is equal to 1. So this process of making denominator irrational to rational is called rationalizing the denominator. Let us take another example. For example, 5 upon root 3 minus root 5. अगर इस केस में हम देखें तो यहाँ irrational माइनस irrational, अगेन इरेशनल, डिनोमिनेटर इज अगेन इरेशनल, तो हम इरेशनल को जब इरेशनल में कन्वर्ट करेंगे विच इज इक्वल टू 5 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 5 इंटू रूट 3 प्लस साइन आपको सिर्फ चेंज करना है, रूट 3 प्लस रूट 5 बाय सॉल्विंग इट 5 इंटू रूट 3 प्लस root 5 upon a minus b into a plus b. It can again written as a square minus b square, b is root 5, 5 into, चलो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, 5 into root 3 plus root 5 upon root 3 square is 3, root 5 square is 5, which is equal to 5 into root 3 plus root 5 upon 3 minus 5 is minus 2, which is equal to minus 5 upon 2 into root 3 plus root 5. Here again the denominator is 2, which is rational. So to make denominator irrational to rational is called rationalization of a denominator. So this is all about today. Okay, thanks.